میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. 9 اپریل، کل کا دن پاکستانیوں کے اوپر جس طریقے سے گزرا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی خوفناک رولر کوسٹر رائڈ، جس میں عام 2 دن تو ہو گئے ابھی بھی سوئے ہوئے. میں ابھی تک نہیں سوئی اور اب اس کے بعد جو ہے وہ سارا اپنا یہ کمپلیٹ کر کے اپلوڈ کر کے پھر میں سوئی. جتنے بھی پاکستانی خاص طور پہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے اسی طریقے سے آواز گزرے ہیں. سب لکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کتنے دیر ہوگی ان کو سوئے ہوئے اور کس طریقے سے کام میں لگے رہے. لیکن اس سے سوا ایک اور بہت امپورٹنس ہے، وہ یہ ہے کہ ہسٹری سے لے کر اب تک پاکستان میں کئی ایک ایسی فوجی حکومتیں آئیں جنہوں نے سویلینس گورنمنٹس کو گرایا، اور اس کے بعد 10-10 11-11 سال. اس وجہ سے پاکستان کا اپنا پاسٹ، اپنی ہسٹری اور اپنا پریزنٹ ہے، اور فیوچر بھی ظاہر ہے اپنا ہی ہوگا. لیکن اس میں ہمارے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے جب کوئی رجیم چینج ہو رہا ہو یا کوئی حکومت چینج ہوتی، اور اس پہ انپریسیڈنٹڈ اور اس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری کچھ اس طرح کے اقدامات دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں جو سسپیشیس جو پتہ چلے یہ کیا ہو. مثلاً ہم صبح سے آغاز کرتے ہیں. صبح یہ پتہ چلا کہ بلکہ ایک دن پہلے پتہ چل گیا تھا کہ کل نو کانفیڈنس ووٹ، اور نو کانفیڈنس ووٹ کے لیے وہی عمران خان کا وہی ایک رویہ سامنے آ رہا تھا کہ میں تو نہیں کرواؤں گا، یا یہ کہ دیکھ لیں گے میرے پاس ابھی بھی کارڈ ہے. اب 10 بجے کا بلایا ہوا اجلاس آپ شام ہو گئی اور وہ نہیں ہوا. ایک ٹرامیٹک سچویشن ہوتی ہے، جو ایک درد ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اس طرح کی سچویشن میں آپ بڑے آپ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں. جو لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو جو ہے وہ ابزارو نہیں کر پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہائپر ہو جاتے ہیں. تو اس طرح بھی ہوا. لیکن ہم نے دیکھا کہ چلیں اگر ابھی نہیں کروایا 2 گھنٹے بعد کروا دیں گے، پھر آفٹر نون تک کہ اب کروا دیں گے، لیکن تب بھی نہیں کروایا. اور پھر جب یہ معاملہ شام تک پہنچا اور وزیر اعظم عمران خان کی جو سیریسنیس ہے اس کا یہ اندازہ تھا، آپ نان سیریسنیس کا اندازہ کر لیں کہ وہ پارلیمنٹ تک نہیں آئے. انہوں نے تو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا کہ یہ کیا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ پوری قوم جو ہے وہ اس وقت اس سب کو دیکھ رہی ہے، اس کو سہ رہی ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے ساری نیشن پر یہ سب کچھ بیت رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں جا رہا ہے. یہ تماشا لگا ہوا ہے، یہ مداری کا ایک تماشا ہے جو لگایا ہوا ہے. ان کو کوئی اس چیز کی فکر نہیں. اور ان کے جو ایڈوائزرز اور منسٹرز تھے بار بار آ کے یہ ہنسی مذاق کہتے ہیں ان کو تو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں غداری کے مقدمے ہیں ان کے اوپر، ان کیا ہم مانیں گے، ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو مانتے ہی نہیں. سپریم کورٹ کا وہ ڈاکیومنٹ اڑا کے پھینک دیا. یہ اس لیے انبلیویبل تھا کہ جو پریویس پرائم منسٹرز تھے ان میں سے کسی کو اتنی کھلی چھوٹ آج تک نہیں ملی. مطلب اس کے تو قریب بھی نہیں گئے نا کہ وہ آئین توڑے، اور آئین توڑنے کے بعد وہ اس طرح سے ڈاکیومنٹ کہیں کہ یہ ہے کیا چیز، ہم تو مانتے نہیں اس کو. تو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا فری ہینڈ چلیں جی، بڑی اچھی بات ہے، اتنی آزادی جو ہے وہ دے دی گئی ہے وزیر اعظم کو. لیکن اس کے بعد جب شام ہو گئی تو تب جو ہے وہ بالکل وہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد اچانک ایک کے بعد ایک خبریں آنا شروع. مثلا یہ آئی خبر کہ پرائم منسٹر نے کیبنٹ کا اجلاس بلا لیا. پھر یہ آئی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ اب ہونے والا ہے. پھر خبر یہ آئی کہ مریم نواز کی کچھ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ کہ یہ جو وزیر اعظم ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، بالکل پاگل ہو گئے، اور ایک ایسے شخص جس کے ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اس کے ہاتھ میں بندر کے ہاتھ میں ماچس پکڑا دی اور ہر جگہ پہ وہ آگ لگاتا. یہ سب آنا شروع ہو گئی. تو نظر یہ آیا کہ یہ تو نہیں کروائیں گے، یہ تو نہیں ہوگا. تو یہ کل پہ جائے گا، کل سنڈے ہے، تو یہ کیا ہوگا، یہ معاملہ تو اسی طرح رہے گا. تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا اس میں جو ہے نا جن کے اوپر گزرتا ہے، یعنی کیونکہ ہمارے اوپر کئی مرتبہ اس طرح کی حکومتیں آتی اور جاتی رہی ہیں اور گرتی رہی ہیں، تو ایسی سچویشن میں جو ہے وہ بہت زیادہ انسان سینسٹیو بھی ہو جاتا ہے اور بہت ہائپر بھی ہو جاتا ہے. خاص طور پر اس وقت ہمارے جو ہے وہ سب لوگوں کا یہ سچویشن ہوئی کہ جب ٹیلی ویژن سکرینز پر ایک کے بعد ایک ڈیولپمنٹ اور خبر یہ آ رہی تھی کہ پورے پاکستان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، پورے پاکستان کے ہاسپٹلس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، پورے پاکستان کے ایئرپورٹس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. ہم نے کہا لو جی یہ تو پہلے والا کوئی کام ہونے لگا. اس وقت پھر انسان جو ہے وہ اپنے سینسز میں جو ہے وہ نہیں رہتا، وہ بس ایک اس میں ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. اور وہی سچویشن سب کی ہو رہی تھی، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک اور ایمرجنسی، ایک اور یہ کچھ ہونے لگا. اور یہ کوئی ایسی عام بات نہیں ہوتی کہ آپ اتنی آرام سے ایبزارب کر لیں، جبکہ آپ اسی سے متعلق ہوں، آپ نے اس کے لیے لکھنا بھی ہو، اس کے لیے بولنا بھی، یہ سب بھی کرنا، اور آپ اس کو فالو بھی کر رہے. اور میں سمجھتی ہوں اگر میڈیا سے متعلقہ نہیں بھی جو لوگ ہیں، شاید ان میں سے بہت سارے عام عوام اتنی زیادہ سینسٹیو ہے کہ ان کے اوپر کتنا زیادہ اثر انداز ایسی سچویشن ہوئی ہوگی. یہ ہوا. اور اس کے بعد پھر جب یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں انہوں نے ہائی کورٹ آ کر جو عدالت کھول لی ہے. اچھا عدالت کھلنے کا جو تو وہ سب بہت حیران. ایک یہ آئی کہ جی جسٹس اطہر من اللہ پہنچ گئے ہیں،
मैं उनकी वीडियो भी आपको दिखाई देती हूँ। फिर उसके बाद पता चला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट आकर खोल लिए। फिर ये पता चला कि इमरान खान जो है उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई हुई है, उसका इजलास कर रहे हैं। फिर ये आया हुआ कि वो कुछ सीनियर जर्नलिस्टों से उनकी मुलाकात हो रही है, वो उनसे मिल रहे हैं। तो इस सब से मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ा फैसला इमरान खान कर रहे हैं। जब कैबिनेट मीटिंग, उसके बाद जर्नलिस्टों से मुलाकात, मैंने कहा या तो ये कोई बड़ा फैसला कर चुके हैं, या कर रहे हैं, या करने वाले हैं। मुझे लगा कर चुके हैं या कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट और अदालत के खुलने की आई तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने तो इसको ऐसे ही समझा कि ये नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए, और ऐसे ही महसूस हुआ पहले। लेकिन साथ साथ जब ये खबरें और जब ये आना शुरू हुआ कि हर जगह पे हाई अलर्ट हो गया, तो 110% सबको यकीन हो गया था ये अच्छा। लेकिन जाहिर के इसके मुतालिक कुछ कोई ऑथेंटिक बात तो नहीं कर सकता। मैं देख रही थी कि टीवी पर जो एंकर पर्सन बैठे हुए हैं, हामिद भी बैठे हुए थे, उनके चेहरे पे मुझे हवाइयां उड़ती हुई नजर, यानी कि बहुत टेंस नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर जो ARY लगाकर बैठा देखा तो वहां पर काशिफ अब्बास बैठे थे, और वहां पे अजीब व गरीब एक खबर चली, और वो खबर ये थी कि वजीर आजम इमरान खान जो है उन्होंने जो एक बड़ी ताकतवर पर्सनालिटी जो फौज की है उसको सेट कर दिया। यानी ये वाली खबर वहां पे चल रही थी, और काशिफ अब्बास मेरा ख्याल उस पर बोलते हुए भी नजर आ रहे थे। फिर वहां पे हमने देखा ट्रांसमिशन में अरशद शरीफ गायब है, वो है ही नहीं। अब आप जानते हैं कि सारे उसमें कौन से जर्नलिस्ट का जो है वो कौन सा रहा। तो ये जो सारी सिचुएशन थी ये बता रही थी कि व्हाट्स गोइंग ऑन, जो कि यहाँ पर सब जानते हैं मीडिया के लोग कि आप जो है वो जो देख रहे हैं वो कौन कहाँ से बोल रहा है, किसका क्या ताल्लुक है, क्या सब कुछ। तो उस पर ये लग रहा था कि ये कुछ हो गया। लेकिन फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि नो कॉन्फिडेंस वोट हो, और फिर सबको बुला लिया गया। और फिर उसके बाद कैदियों वाली गाड़ियां नजर आई पार्लियामेंट के बाहर। तो ये जो थी एक कि ये कुछ हो रहा है, तो इसको मजीद हवा मिली कि हाँ ये तो ठीक है, उसके ऊपर स्टैंप लग गई कि भाई ये भी आ गए। अच्छा, इस पे ये हुआ कि हो सकता है डराने के लिए ना वजीर आजम और उनकी टीम को कि बस बहुत हो गया, तुम्हें गिरफ्तार करें। और फिर ये भी था, सब कह रहे थे कि आर्टिकल 6 लगाओ। इसमें इतनी बहुत सारी चीजें शामिल थी ना कि ये है इनको पकड़ने के लिए आई है, क्योंकि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। इन्होंने आइन तोड़ा, इनको इसलिए आई है ये वाली गाड़ियां, इसलिए ये सब हो रहा है कि इनको पकड़ने लगे। PCL में नाम डलने शुरू हो गए, खबर आई, हमने कहा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बस इन्होंने ये सब कुछ किया है, तो अब इनको नहीं जाने देंगे, शायद फैसला कर लिया गया, और नो कॉन्फिडेंस वोट भी होने लगा। अच्छा, ये सब तो हुआ कि नो कॉन्फिडेंस वोट भी हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी और कहानियां भी जो है वो चलनी शुरू हो। लेकिन मैं पहले आपको इस तरफ आऊं कि बहुत सारी जो बिहाइंड द डोर्स कहानियां चल रही थी वो क्या थी, और उनकी बहुत डीप भी आती रही। मैं आपको जब वो पहुंचे हैं चीफ जस्टिस साहब वो, और फिर कुछ और फुटेजेस दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा। ये सब फुटेजेस हमारे पास आ रही थी हमारे फोन में, तो ये भी असरअंदाज हो रही। अब ये फुटेजेस भी हमारे पास आ रही हैं कि सब कुछ ये हो रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक नो कॉन्फिडेंस वोट से बन रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो जो तमाम हाई अलर्ट और ये हो रहा था, उससे पता चल रहा था कि दिस इज समथिंग एल्स, कुछ और हो रहा है जो कि छुपाया जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये खबर चली गई जो मैंने आपको बताई कि जी किसी को सैड कर दिया, तो उसकी तरदीद आ गई फौरी तौर पर कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात तक क्या हुआ कि सब कुछ जो है हो गया, यानी नो कॉन्फिडेंस वोट भी हो गया। उन गाड़ियों में किसी को नहीं ले जाया गया। जो कासिम सूरी और अचानक से असद कैसर स्पीकर हैं, वो आके कहते हैं मैं रिजाइन कर रहा हूँ। उनसे रेजिग्नेशन ले लिए गए, खबर आई उन दोनों ने रिजाइन कर दिया है। उसके बाद वो आए असद कैसर, उन्होंने जो पार्लियामेंट का इजलास शुरू किया है, और फिर उन्होंने आके उस खत की बात की जरूर की कि मैं ये खत बताऊंगा और मैं ये बता रहा हूँ, मुझे वजीर आजम ने ये कहा है, और मैं वजीर आजम से के साथ इतने अरसे से काम कर रहा हूँ। और वो बिल्कुल रोने वाले हुए हुए थे उस वक्त। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं ये रिजाइन करता हूँ और मेरी जगह आप ये अयासा देते हैं। यानी वो काम जो इतने दिनों से नहीं हो रहा था कि आपके पास मेजोरिटी खत्म हो गई है चंद मिनट्स के अंदर, जब ये सब कुछ हुआ है तो हम हैरान के ये रेजिग्नेशन दे दिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने, और ये जा रहे हैं। और जब उनके रोती हुई शक्ल मुझे नजर आ रही है, यानी उनकी आवाज से पता चल रहा है, तो लगा कि इमरान खान ने इनको कुर्बानी का बकरा बना दिया। देखिए, वो ये बार बार कह रहे हैं कि मेरा उनसे 38 ईयर्स का या कितनी ईयर्स का साथ है, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब क्या है कि मैं क्या करूं, मैं नहीं निकल सकता इसमें से, मुझे उनका साथ देना पड़ रहा है, कुर्बानी का बकरा मुझे बनना पड़ रहा है। वजीर आजम खुद पार्लियामेंट तक नहीं आए, और अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से आइन भी तुड़वाया, तौहीन अदालत भी करवाई, और उसके बाद वही आगे कि अगर उस वक्त गिरफ्तार किया जाता तो कौन होते, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। फवाद चौधरी, ये जो सबसे आगे आगे लोग थे, इनको गिरफ्तार किया जाता ना,
वजीर आजम तो तब भी अपने घर में बैठे होते या कैबिनेट का इजलास जो वो कर रहे थे या वट जो भी कर रहे थे। तो वजीर आजम क्या कर रहे थे, इसमें वो जो खबर आई थी उसकी तरदीद तो हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर मुतालिक बात करते रहे। फिर कामरान खान जो है सीनियर एंकर पर्सन, एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं, वो हर चीज पे अपनी राय देते हैं। अच्छा, एक ही चीज पे जो है ना उनकी कॉन्ट्रोडिक्टरी आ रही होती है वीडियो। वो इमरान खान की हर रोज तारीफी भी बनाते हैं वीडियो, और हर रोज ऐसी वीडियो भी उनकी आती थी जो कहते थे आपने बड़ा काम खराब कर दिया। फिर एक दिन आती थी वो कमाल कर दिया भाई, फिर अगले दिन आती थी ये क्या कर दिया, फिर एक दिन आती थी आर्मी चीफ ने तो तबाहियां मचा दी, इतना जबरदस्त काम कर दिया, फिर अगले दिन आती थी कि जरा फौज को देख तो सोच समझ के। लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहुत सीनियर है तो उनके मुतालिक सब देखते हैं, बेशक उनको तनकीद भी करते हैं, मजाक भी बनाया जाता है, लेकिन फिर भी देखा जाता है क्योंकि उनके पास सोर्सेज है और अंदर की खबर उनके पास होती है, बात तो अपनी जगह पे तय है। तो उन्होंने ये कह दिया कि जी ये जो है ट्वीट कर दी कि ये तो इमरान खान ने जो है ये बरतरफ करने की कोशिश की है। फिर हुआ क्या कि बीबीसी ने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया, और उस आर्टिकल का नाम है कि सनीचर की शब वजीर आजम हाउस में आखिर हुआ क्या। सनीचर की शब वजीर आजम हाउस में आखिर हुआ क्या, जो मैंने आपको बताया है उन्होंने वही लिखा है, सोर्सेज बताए। हो सकता है कि गलत हो और इसकी तरदीद भी आ जाए, हो सकता है उनको कहा जाए अथॉरिटीज की तरफ से आपने गलत लिखा है, झूठ लिखा है, इसको उतारे हैं। आसिफ फारूकी बड़े क्रेडिबल एक नाम है और फिर बीबीसी में ये जो है शाया हुआ है, लेकिन उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जनाब जो वजीर आजम है उन्होंने एक ऐसी कोशिश की जो कि फेल्ड अटेम्प्ट थी। वैसे तो दूसरी तरफ से coup होता है, लेकिन उनका कहना है कि इस तरफ से जो है वो coup करने की अटेम्प्ट की गई है सिविलियंस की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से, जो कि फेल्ड थी, क्योंकि उसके लिए एक नोटिफिकेशन चाहिए होता है। और आपने उन्होंने ऐलान तो कर दिया, ऑर्डर भी जारी कर दिया, और जिसको बनाना था नए को उनको कह भी दिया कि आप आ जाएं जनाब, तशरीफ ले आए, और वो चल भी पड़े। लेकिन उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री जिसने वो नोटिफिकेशन देना होता है कि पुराना जो है वो उतर गया और नए जो है वो आ गए हैं, वो नोटिफिकेशन जारी नहीं। क्या वजीर आजम ये समझते थे कि इतना आसान है डिफेंस मिनिस्ट्री से वो नोटिफिकेशन निकलवा लेना? मैं आपसे थोड़ा सा सुना देती हूँ, जो मैंने आपको बताया स्टोरी वही है। इस दौरान 2 बिन बुलाए मेहमान भी बजरिया हेलीकॉप्टर गैर मामूली सिक्योरिटी और चाको चौबन जवानों के हिसार में वजीर आजम हाउस पहुंचे और वजीर आजम से तकरीबन पौना घंटा तन्हाई में मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बात हुई, जाहिर है इस बारे में कोई इतला दस्तयाब नहीं है, ताहम बावसूख और मोतबर सरकारी जराये ने जिन्हें इस मुलाकात के बारे में बाद में मालूमात फराहम की गई हैं, उन्होंने बताया कि मुलाकात ज्यादा खुशगवार नहीं थी। मुलाकात में मौजूद एक ओहदेदार को मुलाकात में मौजूद एक ओहदेदार को उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान 1 घंटा कबल ही उनके ओहदे से बरतरफ करने का हुक्म जारी कर चुके थे। इसलिए वजीर आजम के लिए इन मेहमानों की, बिन बुलाए मेहमानों की अचानक आमद बहुत गैर मुतवक्को थी, अनएक्सपेक्टेड थी। इमरान खान हेलीकॉप्टर्स के मुंतजिर तो थे, लेकिन इस हेलीकॉप्टर के मुसाफिरों के बारे में उनका अंदाजा और एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल गलत साबित। उन जराये का कहना है कि साबिक वजीर आजम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस हेलीकॉप्टर में उनके नए मुकर्रर करदा जो हैं ओहदेदार वो वजीर आजम हाउस पहुंचेंगे। ज़ाहिर उन्होंने कहा हुआ होगा ये वो आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे, तभी उन्होंने कहा। और उसके बाद जो है फिर नो कॉन्फिडेंस वोट का जो है शोगा पड़ा है और फिर ये सब होता रहा। उसके बाद उन्होंने काफी कुछ आगे भी लिखा है, जिसमें देखिए आप उससे ये आप निकाल सकते हैं, जो इसका क्रक्स है वो है कि उन्होंने जो है ये बरतरफ किसी को करने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए जो उन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया, जो मैं आपको कह रही थी, जब कैबिनेट का इजलास हो रहा है उस दौरान पता चल रहा है, फिर वो जर्नलिस्टों से मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किस अक्लमंद ने उनको जो है वजीर आजम को ये कहा था कि ये कर लें। आप इतनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन, आप इतना ज्यादा ये करके कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं, आप कैसे इससे वो हो पाएंगे? अगर ये इसमें ये भी है कि अगर ये हो भी जाता, फर्ज कीजिए कि वो नोटिफिकेशन निकलवा भी लेते, तो उसको नल एंड वाइड करने का बंदोबस्त भी पहले कर लिया गया। और फिर इसमें ये भी है कि एक अननोन बंदे की तरफ से, ये तो हर खबर टीवी पे भी चली है कि अननोन बंदे की तरफ से जो है वो हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इमरान खान है उन्होंने अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, जाती यानी पॉलिटिकल एजेंडा के हसूल के लिए अपने इख्तियारात का, राइट्स का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जो वो अथॉरिटी है उनको बरतरफ कर दिया है, सैक किया है। और अदालत इस हुक्म को फौरी तौर पर जो है अवामी मफाद के लिए, यानी अवाम के लिए जो है इसको नल एंड वॉइड करार दे, कलअदम दे। तो ये सिचुएशन बनी है, ये इन्होंने लिखा। मेरा ख्याल है कि इसकी ये गलत स्टोरी होगी, कोई इतना ज्यादा ऑथेंटिक होना जरूरी भी नहीं है, ऐसी चीजें आ जाती हैं, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर बात हो रही है तो मैंने आपसे ये बात कर दी कि ये सब कुछ जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में सब कुछ होता है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जब ये सिविलियंस की तरफ से, जिस तरह वजीर आजम ने कॉन्स्टिट्यूशनल कू किया करेगा, वो ये भी नहीं सोचा जा सकता। तो प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूशनल कू किया, और ये वाला कू भी जो लगता है कि
वैसे तो यार ये झूठ ही होगा सब कुछ, तो अगर हुआ है तो वजीर आजम की तरफ से ही जो है वो करने की कोशिश की गई है। दिस इज अनबिलीवेबल। कितने लकी हैं अब वजीर आजम। आज तक इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे उनकी तो मजाल नहीं थी कि वो इससे करीबी पहुंच जाए भाई, कुछ ऐसा कर पाए। ये वजीर आजम देखिए आप कितने लकी हैं कि वो ये सब कर रहे हैं, उनको खुली छूट है। लेकिन अनलकी इस तरह के वो ये, उनके लिए अनलकी कि वो ये नहीं कर पाए। उन्होंने इतना आसान समझा था, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा वो कर भी पाते तो बहुत ज्यादा मुल्क में इंतशार पैदा होता है। इस तरह नहीं होनी थी खत्म बात। ये बात बहुत बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और फिर वजीर आजम इमरान खान अपने इन स्टेप्स की बिना पर बहुत एक मुल्क को जो है जहन्नुम में झोंकते थे उसके बाद जो कुछ होना। तो बहरहाल कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन वजाहत मसूद साहब ने एक जो ट्वीट की वो मुझे पढ़ के बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि जनाब ये सब कुछ जो हुआ है इसके अंदर जो है वजीर आजम इमरान खान को जो है वो शायद पता नहीं क्या कि कुछ इस तरह का भी कुछ हुआ है कि उनके चेहरे पे कुछ निशान है। तो उन्होंने कहा कि अगले चंद दिन जो है वो शायद सामने ना आ सके। लेकिन मैं आपको दिखाई देती हूँ वो जब गुजर रहे हैं विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, और उन्होंने तो कल प्रोटेस्ट के लिए लोगों के पास आने कैसे हो सकता है, उनमें ये खबर जो है बिल्कुल झूठ लग रही है दोनों खबर मुझे। तो ये सिचुएशन है। अच्छा इसके साथ ही मैं आपको ये भी दिखाई देती हूँ कि जो सेलिब्रेशन हुई है, कमाल सेलिब्रेशन हुई है पीएमएलएन की तरफ से, बड़ी आतिशबाजी फायरवर्क्स किए गए हैं, और कुछ प्रोटेस्ट भी हुए हैं पीटीआई की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। वो प्रोटेस्ट में कोई लाखों लोग हैं या करोड़ों लोग, आपको देख लीजिए, आपको देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रही। अब देखते हैं कल कितने लाख लोग जो है पहुंचेंगे। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये कि वजीर आजम इमरान खान जो हुआ करते थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो अपोजिशन लीडर के तौर पे काम करेंगे, बैठेंगे, या उन्होंने कुछ और फैसला किया है, या उनके मुतालिक कुछ और फैसला किया है, ये हमें अगले चंद घंटे और चंद दिन बता दें। चले मैं आपको दिखाती हूँ जो सेलिब्रेशन हुई है और जो प्रोटेस्ट। सही बात है यार, आपको ये देखें ना पीएम वापस तकरीबन ये 12वीं गाड़ी है। गाड़ी जा मेरे ख्याल से पीएम वापस और ना चेक करिए। जी मन कराई जाइए हम अधिकार मैंने दसाएंगे तब